নির্বাচন কাণ্ডে বাইরে থেকে লোক এসে, বাইরে থেকে পুলিশ এসে তারা কোনো পরীক্ষার মধ্য দিয়ে না গিয়ে প্রায় সমস্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন এবং সংক্রমিত হওয়ার যে সুযোগ তারা করে দিয়েছেন তারই পরিণাম আজ। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের এই অপদার্থতা, দায় নেওয়া নয়, তারা অপদার্থ। দায় নেওয়া তো তবু একটা কথা উত্তর দিতে পারবে, তারা অপদার্থ। তারা চূড়ান্তভাবে দায়িত্বহীনতার কাজ করেছেন। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাশে আছি। আজও নবান্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জরুরি মিটিং করেছেন। আমরা আবার বলছি, আমাদের কাছে মানুষের জীবন অমূল্য। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ যেমন হবে, তেমনি অন্যদিকে কোভিড সিচুয়েশনের স্বাস্থ্যবিধি এবং তার নিয়ন্ত্রণ এবং সুস্থতার দিকে লক্ষ্যে রেখে জরুরিকালীন ভিত্তিতে তিনি যে কাজ করছেন। এই মুহূর্তে যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আসানসোল দক্ষিণে দিনভর আমাদের নজর ছিল আজ আসানসোলের দিকে। বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালকে ঘিরে বিক্ষোভ চলছে আসানসোল দক্ষিণে। কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে, আপনারা সেই ছবি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন নিউজ 18 বাংলার পর্দায়। এলাকায় রুট মার্চ করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, সেই ছবি এক্সক্লুসিভলি নিউজ 18 বাংলায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। No, no, you can't abuse us, sir. আমাদের প্রতিনিধি অরুণিমা আমাদের সঙ্গে একেবারে ঘটনাস্থল থেকে রয়েছে। অরুণিমা, এই মুহূর্তে কি পরিস্থিতি, কি ঘটেছে? এরিয়া লোকালিটি এবং সেখানে মানুষজন ভিড় করে এবং তাদের ক্ষোভ সিআরপিএফ সেন্ট্রাল ফোর্স ঠিক করে তাদের ভোট দিতে দিচ্ছে না এবং সিআরপিএফ হিসেবে বচসা। এখানে কিন্তু বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল আসার পরই তাদের ভিড় বাড়তে থাকে এবং সিআরপিএফ তাদের সরানোর চেষ্টা করে। এখনো আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের ধীরে ধীরে সরানোর চেষ্টা হচ্ছে এবং তাদের বাড়ি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছে, তারপরে হালকা লাঠি চার্জ করে সিআরপিএফ। প্রজেতা, বেশ ধন্যবাদ অরুণিমা। সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আসানসোল দক্ষিণে, যেমন আমাদের প্রতিনিধি জানালেন। আমাদের এই মুহূর্তে আসানসোল দক্ষিণে আবার অন করো। অরুণিমা, আরো একবার তোমার কাছে চলে যাব এবং জানতে চাইবো এই মুহূর্তে পরিস্থিতি কি নিয়ন্ত্রণে এসেছে?
দেখো প্রতিটা যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি টিভির পর্দায়, এটা রহমতনগরের ঘটনা। এখানে কিন্তু বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল যখনই আসেন একটা ভিড় হয়, একটা জটলা হয়। এটা সংখ্যালঘু একটি এলাকা এবং সেখানে অগ্নিমিত্রাকে ঘিরে নানান রকম মন্তব্য করা হয়। সেখানে কিন্তু ভিড় সরানোর চেষ্টা করে সিআরপিএফ, তারা লাঠিচার্জ করে এবং এখনো সেই লাঠিচার্জের ছবি দেখা যাচ্ছে। এখানে বিপুল কেন্দ্রীয় বাহিনী পোস্টিং হয়ে গিয়েছে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে লোকজনকে সরাচ্ছে এবং সেই কাজ এখনো করে অগ্নিমিত্রা পালকে ঘিরে একটা অভিযোগ উঠে এসেছিল, যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি 27টি গাড়ির কনভয় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেক্ষেত্রে কি বহিরাগত মানুষ রয়েছেন এমনটা অভিযোগ উঠছে? দেখো এখানে যে বিষয়টা এই মুহূর্তে তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন এবং তার সঙ্গে কিছু কর্মী রয়েছে এবং বেশ কিছু মিডিয়ার গাড়ি রয়েছে। অগ্নিমিত্রা পালের বক্তব্য যে তার আশপাশে প্রচুর সংবাদ মাধ্যমের লোকজন রয়েছে এবং টিএমসি যে প্রার্থী সায়নী, তার সঙ্গে কেউ নেই। সেই জায়গা থেকে তিনি এরকম একটা অভিযোগ করছেন। প্রচেতা, বেশ ধন্যবাদ অরুণিমা। সকাল থেকেই আসানসোল দক্ষিণ খবরের শিরোনামে বারবার উঠে এসছে অগ্নিমিত্রা পল। তিনি বারবার অভিযোগ করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বুথে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেছেন। এই মুহূর্তে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অগ্নিমিত্রা পলকে ঘিরে বিক্ষোভ। দৌড়াতে পারছি স্যার, ও তাড়াতাড়ি এই মুহূর্তে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা তিনি সাংবাদিক বৈঠকে রয়েছেন, শুনবো তিনি কি বলছেন। सम्मेलन में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुकुल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, अमित मालवीय जी, श्रमिक जी, भट्टाचार्य जी, सभी उपस्थित वरिष्ठ साथीगण और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज 7वें फेज की पोलिंग 6:30 बजे समाप्त हो जाएगी और कैंपेनिंग 8वें फेज की आज कंप्लीट हो जाएगी, यानी कैंपेन इज गोइंग टू एंड हियर। मेरी भी आज 3 वर्चुअल मीटिंग्स थी जिसमें मैंने भाग लिया, कल भी 3 मीटिंग्स थी। सबसे पहले तो मैं बंगाल की जनता को, प्रबुद्ध जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 7.5 लाख वोटर्स अभी 8th फेज का बच गया है उसको मिलाकर उन लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया है और बंगाल में विपरीत परिस्थितियों को में भी उन्होंने जिस तरीके से अपना मतदान दिया है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि 8वें फेज में भी हमको आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। उसके लिए मैं बंगाल की जनता को बहुत साधुवाद भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, जिन्होंने भरपूर पेशेंस को दिखाया है, परसिविरेंस को दिखाया है और मेहनत के साथ वह बंगाल की जनता का आशीर्वाद लेने में सफल हुई है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। वैसे 6ठे फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की जनता का स्पष्ट आशीर्वाद प्राप्त करके सरकार बनाने की स्थिति पैदा कर ली, लेकिन 7वें फेज और 8वें फेज में मोदी जी के जो विकास की यात्रा है और मोदी जी के द्वारा जो बंगाल को सोनार बंगाल बनाने की बात है, उस पर भरपूर मोहर लगाने के लिए बंगाल की जनता आतुर है और वो 7वें फेज में भी और 8वें फेज में भी उस पर वो मोहर लगाएगी, ऐसा मुझे हम सबको विश्वास है। और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज का सपना
जिसको हम साकार कर रहे हैं, उसके प्रति उनकी इस कमिटमेंट बंगाल की जनता की हमको दिखती है और वो उस चुनाव में भी हमको देखने को मिलेगा 8वें फेज में। मित्रों, ये जो चुनाव हुआ ये अपने आप में बहुत ही अपने किस्म का चुनाव हुआ, अनप्रेसिडेंटेड एंड यूनिक। दिस इलेक्शन वॉज अनप्रेसिडेंटेड एंड यूनिक इन इट्स ओन वे। और जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में, प्रचार में, हर एक जगह बहुत ही उच्च कोटि की मैच्योरिटी दिखाई है और मैच्योरिटी के साथ साथ इलेक्शन को लड़ा है, और टीएमसी के प्रोवोकेशन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक परसिवियरेंस के साथ जो ये चुनाव लड़ा है वो देखने लायक रहा है। और मैं बार बार शब्द बोल रहा हूं, विथ लॉट ऑफ मैच्योरिटी and in spite of all provocations, high standards of electioneering has been maintained by Bharatiya Janata Party. And the same way अगर हम देखें तो टीएमसी ने led by ममता जी ने lowest level of ethics का प्रदर्शन किया है। बहुत ही हल्के किस्म का immature, provocative इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने इस सारे प्रक्रिया में प्रतिपादित किया है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा राइटियसनेस इन पॉलिटिक्स, सच्चाई और अच्छी तरीके से चुनाव को, क्लीन चुनाव लड़ने की बात। और हमने कहा भी कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, सुशासन देंगे, और सुशासन के साथ साथ जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। तो सबको साथ लेकर के चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात को लेकर के हमने चुनाव को लड़ा। पॉजिटिव दृष्टि को ध्यान में रखकर के, रचनात्मक दृष्टि को हमने अपने चुनाव का तरीका रखा। वहीं हमने सोनार बंगाल की बात की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोनार बंगाल की बात की, असोल परिवर्तन की बात की, और हम यहां बंगाल में चल रहे टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, सिंडिकेट राज, इसके खिलाफ बंगाल के लोगों ने अपना मन भी बनाया और उसको बनाने में भारतीय जनता पार्टी अग्रसर रही। और उन्होंने, बंगाल की जनता ने इस बात को स्पष्ट माना कि टीएमसी की 10 साल की सरकार टोलाबाजी की सरकार है, तुष्टीकरण की सरकार है, तानाशाही की सरकार है, डरा करके, धमका करके इस चुनाव को लड़ने का प्रयास हुआ है। हम बंगाल की दृष्टि से भी और कलकत्ता की दृष्टि से भी हम इसको पूर्वोदय का केंद्र मानते हैं, और यह दिस सिटी वी कंसिडर टू बी द सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड दिस इज ऑल्सो द सिटी ऑफ 21st सेंचुरी। इसको हमने और विकसित करना है, मोदी जी का जो सपना है उसको हमने साकार करना है, इस बात को लेकर के हम चले हैं। और बंगाल की भाषा है क्या? ये बंगाल की संस्कृति है क्या? इज दिस बंगाली कल्चर? वी रिप्रेजेंट बंगाली कल्चर। और मैं तो कह सकता हूं गौरव से, क्योंकि बंगाल को जितना मैं जीता हूं उतना और कोई नहीं जीता। आई कैन से विथ फुल कमांड एट माई डिस्पोजल। इसकी मिठास की भाषा हम तो दैनंदिन देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो भाषा उन्होंने बोली वो बंगाली नहीं हो सकती है, ये बात हमको मानना चाहिए। वो बंगाल की संस्कृति नहीं हो सकती, ये हमको मानना चाहिए। जो उन्होंने नैरेटिव सेट किए और वो उसको बंगाल की जनता ने सिरे से नकार दिया। भारी भीतरी संस्कृति, भाषा, सब के विषय पर भारतीय जनता पार्टी ने पॉजिटिविटी के साथ चुनाव लड़ा और बंगाल की जनता ने आशीर्वाद दिया, ये हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, अभी भी जहां तक आयुष्मान भारत का सवाल है, उनका अहम सामने आ गया, अहंकार, और इस अहंकार ने 4,64,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर लेने से वंचित रखा है। आई वॉज द हेल्थ मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। We had requested, I had meetings with the health secretary, our health secretary had meetings. We requested them. हमने यहाँ उनके लिए, पात्रों के लिए चिट्ठियां भिजवाई, वो वापस भिजवा दी,
और वो खड़ी वो उसके बीच में आ गई। अब पॉजिटिव नोट पर हम कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, आयुष्मान भारत का फैसिलिटी मिलेगी और 4,64,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। गंभीर बीमारियों से इलाज के लिए पैसे मिलेंगे। ये बात का विश्वास हम दिलाते हैं, ये हम कहना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके बीच में आप आड़े आ गई, आपका अहंकार जाग गया, आपने उस अहंकार के साथ उस बात को रखने का प्रयास किया। अब हमारी सरकार आएगी, हम पिछले 3 साल का 18,000 बकाया भी देंगे और 4,000 रुपए साल का एडिशनल भी देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है जो हम पूरा करने वाले हैं। और अब उनकी चुनाव की प्रक्रिया को देख लीजिए, उन्होंने कहीं चर्चा नहीं की कि वो क्या उन्होंने 10 साल में किया है। हर होल स्पीचेस, सारे टीएमसी का नैरेटिव में व्हाट दे हैव डन फॉर द पीपल ऑफ बंगाल इन लास्ट 10 years, नॉट इवन ए सेंटेंस हैज बीन स्पोकन बाय एनी ऑफ द लीडर्स लेड बाय ममता जी। वो आगे क्या करेंगी, यह भी कोई नरेशन नहीं, कोई नैरेटिव नहीं मिलता है हमको।